जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਬੜੈਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? MCQs ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼। MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ MCQs ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰਾਥਨ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ETT ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ETT ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਫਰਟ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ETT ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਰਾਸ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥਿਓਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਸਟ 1 ਜਾਂ 2 ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਰਡਲੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਰਾਥਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10th ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਬਣਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ MCQ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है बच्चे, दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर ETT, फॉर अदर कंपीटिटिव एग्जाम ऑल्सो। NTT की दोबारा भर्ती आई है, NTT की दोबारा भर्ती आई है, तो जोड़े बच्चे NTT की दोबारा प्रिपेरेशन कर रहे हैं उन्होंने लिए भी वीडियो हैल्पफुल है, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी हैगी है। तो ये जोड़े क्योंकि सिलेबस सारिਆਂ ਦਾ ऑलमोस्ट सेम ही रहता, एक दो टॉपिक इधर उधर चेंज हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चे, बिना किसी देरी तो आप स्टार्ट करते हैं अपना अज का सैशन। ठीक है, हिंदी का मैराथन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो बाद विच लाइक कमेंट जरूर करके जाओ, रिस्पॉन्स दिया करो। व्यूज़ ज़्यादा कर लेने बच्चे, देखते किन्ने बच्चे ने देख ली, बट कमेंट हार्डली 4-5 बच्चे करते जेडे रिस्पॉन्स देंगे है। तो सारे बच्चे रिस्पॉन्स दिया करो तुहानू वीडियो किद्दां दी लगी बच्चे, और चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लिओ। हाँ जी, ये नाल ही आपां जी क्लास शुरू करते हैं जी। ठीक है जी, तो बहुत ही इंपोर्टेंट तुहाडे MCQ ने बच्चे, इंपोर्टेंट MCQ ने। इन्हां नू ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ वीडियो बनाने, सैकेंड टाइम साढ़े याद हो जाते कि वाले आंसर है। इदा ही तुसी हो बच्चे, तुहानू भी याद हो जाना। ठीक है, अगर तुसी 2-3 बार वीडियो नूं एक बार सुन लोगे ना, क्योंकि कन्नी सुनी हुई जिहड़ी गल है कदे भी आपां भुलदे नहीं हैगे। तो वीडियोज़ नूं सुनो, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, तो तुहानू लिखण दी जां फिर स्क्रीनशॉट लैके रखण दी, दुबारा पढ़न दी भी जरूरत नहीं पैंदी। तो तुहाडे ईजली आंसर है जिहड़े वो याद हो जाने हैं। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आप अपना अज का सैशन। फर्स्ट क्वेश्चन की है जी, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हमारे ऑप्शन है जी बहुरूपीय, द्रविड़, अस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो किस परिवार की भाषा है जी हिंदी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना बच्चे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आप हिंदी लैंग्वेज पे आ जाओ। पहले इंट्रोडक्शन तो पंजाबी में कर ली है, क्योंकि हमारी मदर टंग पंजाबी है ना, तो पहले तो पंजाबी निकल लिया। अब हम जब क्वेश्चन करने हैं तो आपने हिंदी में ही अटैम्प्ट करनी है। ठीक है राजे, तो हिंदी हमारा इसका राइट आंसर क्या है जी बताइए? तो हमारा इसका राइट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर A, बहुरूपीय। ठीक है, इसका आंसर है जी बहुरूपीय। ठीक है, ये याद रख लेना। हिंदी किस भाषा परिवार को रिलेट करती है? बहुरूपीय। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? कौन सी है जी? तो हमारी जो इसका राइट आंसर है जी हिंदी, क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो सबसे ज़्यादा जगह पर बोली जाती है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय भाषा भी बोलते हैं। तभी हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं, पता है ना सबको। तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी कौन सी है जी? हिंदी। हाँ जी रजी, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी जो बोली है या फिर भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंदर नहीं आती? कौन सी है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु? ठीक है, तो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बताइए रजे? तो हमारा इसका राइट आंसर है जी तेलुगु। हमारा राइट आंसर है जी तेलुगु, जो हिंदी भाषा के अंदर नहीं आती है। ठीक है, याद रख लेना, ये याद करने वाले क्वेश्चन है बच्चे, इनको आपको एज इट याद रखना पड़ेगा। पता नहीं है एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से डाल दे। तो ठीक है रजे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? हिंदी को किस वर्ग में रखोगे भारतवर्ष में? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिंदी है वो हमारी क्या है जी? हाँ जी बच्चे, ऑप्शन दोबारा से रीड करो। हमारी हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा?
वैसे तो हम सबको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट ही हो गई। अब इसमें कंफ्यूजन की बात है, ये देखो राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा, अब इनमें से आंसर कौन सा सही है? ज़्यादातर हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें हम हिंदी हमारी बोली जाती है, इसलिए हम इस हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बोल देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं राज्य भाषा आता है, ऑप्शन में आपको राज्य भाषा भी दिया हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा जी वो राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, राज्य भाषा होगा। क्योंकि अगर हम हमारे अनुच्छेद 343 के अनुसार देखें, आपके अनुच्छेद 343 के अनुसार देखें, तो वहाँ पे हमारी हिंदी है उसको क्या दर्ज किया गया है? हिंदी को एज ए राज्य भाषा दर्ज किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते क्या हैं, ऑरली जो बोलने में आता है वहाँ पे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, ऑप्शन में बच्चे अगर देखो, ऑप्शन में अगर आपको राज्य भाषा नहीं दिया, ऑप्शन में अगर आपको राज्य भाषा नहीं दिया तो हमारा ऑप्शन जो आंसर राइट है वो है राष्ट्रीय भाषा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में राज्य भाषा दिया गया है तो करेक्टली आपका आंसर राज्य भाषा होगा। ठीक है, राज्य भाषा होगा, क्योंकि अब इसको हटा दिया गया है। इसको सिर्फ बोलने में हम यूज़ करते हैं, लेकिन लिखने जो हमारा अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, तो इसका सही आंसर है राजभाषा। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इसको पर टिक लगाना, अगर ऑप्शन में राजभाषा नहीं है तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय भाषा। ठीक है बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये आपका ऑप्शन में है तो इस पर ही टिक लगाना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको राष्ट्रीय भाषा पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, ये आपको डिस्कशन करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में अभी तक आपको शायद नहीं पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा है जो कहते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? इसकी थ्योरी वाली हमने आपको बता दी है बच्चे, इसका थ्योरी की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारी लिपि वगैरह के बारे में इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारी हो गई है, हमारी मैराथन 1 में इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन हो चुकी है। तो आज वाले सेशन में भी अगर हम थ्योरी को लेके चलें तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, आप थ्योरी वहाँ से देखना, और आज हम सिर्फ एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल की पूरी हमने सवा घंटे की वीडियो बनाई हुई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पे जाके डिटेल देखो, डिटेल चाहिए तो वहाँ पे देखो पूरी फुल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे आज सिर्फ हम एमसीक्यू टिक करेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो अब आप एमसीक्यू देखो, थ्योरी पढ़ो और रिलेट करो उसके साथ। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताओ जी, हमारे ऑप्शन में क्या है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? बताइए, सोचिए खुद में से। तो इसका हमारा आंसर है जी मराठी। ठीक है, मराठी की हमने करवा चुके हैं हम ऑलरेडी थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मराठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूछ सकते हैं आपको। तो आपने बताना शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? तो उसका आंसर बताइए क्या है? ये हमने थ्योरी में नहीं किया डिस्कस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने यहाँ पे डाला है, जिससे इसका नाम ही पता होना चाहिए। इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं पूछते इससे ज़्यादा, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है जी ब्राह्मी। तो हमारा राइट आंसर है जी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अधिकतर भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भाषाएं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है जी, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। गुरुमुखी है पंजाबी की, गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आपको सामने दिख ही गया, देवनागरी। ये आपको आया भी हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उनमें उन्होंने पूछा है तो कि हमारी कौन हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है जी हिंदी की। ठीक है, देवनागरी हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से मोल्ड करके डाल सकते हैं। देखो
ठीक है। वो देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की, ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन मोल्ड होकर आ सकता है, तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यह तो हमें पता ही था, बहुत ईजी था, देवनागरी। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थ्योरी से रिलेट नहीं करते, लेकिन आपको इसको एज इट याद करना पड़ेगा, ठीक है, एज इट इनको याद रखना पड़ेगा आपको, इनके नाम। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो बताइए, 343 से लेके 351, हिंदी सॉरी बच्चे पंजाबी बोली जाती है, अब मैं तो इंग्लिश में ही बता दूंगी। ऑप्शन 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 और 334 से 153। बताइए क्या है, अगर आपको आंसर पता है, अगर आपने हिंदी के बारे में कहीं से पढ़ा है तो इसका आंसर बताइए क्या है। सोचिए अपने माइंड में, अपने आप से कंपटीशन करके देखो बच्चा। हम जो भी एमसीक्यू मैं ये बोल रही हूँ, आप अपनी ऑप्शन खुद एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक लें, नोटबुक पे आप अपने आंसर ऑप्शंस लिखते जाएं कि मैंने इसका ए लिखा, इसका मैंने बी लिखा। बाद में आपने देखना है कि मेरा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लास्ट में आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, लास्ट में आपने बताना है ऑनेस्टली कि आपने कितना स्कोर किया। स्कोर बताना बच्चे कि आपने कितने स्कोर इसमें अटैम्प्ट किए, आपके सही के कितने आपके गलत गए। ठीक है, देखते हैं कितने पानी में हम सब। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से है। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे तो खुद को दिखाओगे। अगर चीटिंग करके हम क्वेश्चन लिखते हैं तो कौन देख कौन रहा है? हम खुद ही देख रहे हैं ना। हमारे पास अपनी कॉपी है, हमारे पास अपना पेन है। अगर हम सही आंसर लिखेंगे तो भी हमारा है, गलत लिखेंगे तो हमारी नुकसान है, सही लिखेंगे तो हमारी फ़ायदा है। तो आप अपने स्कोर राइट डाउन करो, कि ऑप्शंस लिखो, अगर ठीक है तो उस पर ठीक लगा दो, अगर गलत है तो उस पर गलत लगा दो, और लास्ट में आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करके जाना, स्कोर ज़रूर कमेंट करके जाना बच्चे। हम बार बार बोलते हैं रिस्पांस दीजिए, स्कोर कमेंट करके जाना। देखते हैं कितने बच्चों ने कितने स्कोर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है जी 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हमने किया था, रूढ़ शब्दों को, इनका हमने डिस्कशन भी की थी। रूढ़ शब्दों को किस नाम से जाना जाता है? अन्य क्या नाम है उसका? अमूल है, जोड़ शब्द है, मूल शब्द है, या फिर अयोग्यवाह है? बताइए बताइए राइट आंसर क्या है। हाँ जी, राइट डाउन आप लिख लो अपनी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर है जी, देख लिया ऑप्शन लिख ली, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम क्या है। इसका राइट आंसर है जी हमारा सी, मूल शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द है उनको हम रूढ़ शब्द भी कह देते हैं। ठीक है, जो मूल शब्द है हमारे उनको हम रूढ़ शब्द भी कह देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही चला गया। ठीक है, लिख लो बच्चे। नेक्स्ट है जी, पिपासा सही तद्भव होगा। पिपासा का सही तद्भव क्या है? तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पिपासा का सही तद्भव इजी क्योंकि पेपर में ज़्यादा टफ आती ही नहीं है बच्चे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं होते, यहीं पे आप मार खा जाते हो। अगर एक और पढ़ा हो ना तो वही इजी लगने लग जाता है। अगर आपने हिंदी टच ही नहीं की तो वही आपको पहाड़ लगेगा कि ये तो बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है। बड़ा पहाड़ नहीं है बच्चे, आप पढ़ के तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि यही सही है। आता होगा तो सही लगेगा, नहीं आता तो ऑब्वियसली पहाड़ ही लगना है। तो ये देखो, इनमें सही कौन सा है? पानी, पिपासा पानी, प्यासा पतीता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा है? लिख लो आप अपनी नोटबुक पे, बाद में सही बताना। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, क है, ख है, ग है या क है? तो इसका राइट आंसर क्या है जी? पिपासा का। तो हमने इजीली हमें पता चल जाता है प्यासा। इसका सही तत्व क्या है जी? प्यासा। ऐसे राइट डाउन करते हैं प्यासा को। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कर शब्द का कौन सा, ये देखो आंसर ही आ गया पहले। कर शब्द का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो कर शब्द का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो हमारा कर क्या होता है? कर को हम हाथ को भी कर बोल देते हैं,
हाथ को भी कर बोलते हैं, टैक्स लगता है उसको भी कर बोल देते हैं। करना, कुछ करना, कर, ये भी हमारा इसका एक अर्थ और बनता है चलना, ये विपरीत है, ये नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या था, चलना। ठीक है, कौन सा नेकार्थी की शब्द नहीं है, कर को हाथ भी, टैक्स भी, करना भी, तो ये चलना है जो हमारा, वो इसमें नहीं आता, इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है जी, सुपुत्र का विलोम शब्द। सुपुत्र का विलोम शब्द, सुपुत्र क्या होता है, पुत्र, बेटा, अच्छा पुत्र, या फिर कुपुत्र, या फिर कुपुत्र। अब चौथी ऑप्शन आपकी लास्ट में चलेगी, ये मत सोचिए, कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे ये तो सही, सारी सही लग रहे हैं, तो ये थी हमारी लास्ट वाली ऑप्शन है, ये हमारी लास्ट वाली ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली सुपुत्र होता है एक, कुपुत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी, कुपुत्र। ठीक है, सुपुत्र का हमारा विपरीत विलोम कुपुत्र। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, सांप का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सांप को हम सर्प भी बोल देते हैं, भुजंग भी बोल सकते हैं, नाग भी बोल सकते हैं, लेकिन नग नहीं कहते। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी नग। ठीक है, नग कुछ नहीं होता, तो सर्प, भुजंग भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, लेकिन नग नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं जी, बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5। 2, 3, 4 या फिर 5। वचन के कितने टाइप्स हैं जी, ठीक है, 2 हैं जी, 2 टाइप्स है हमारी वचन की। ठीक है, कितनी टाइप्स है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 शब्द डैश होने का बोध कराती है, उसे वचन कहते हैं। 2 शब्द, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन क्या है, एक, अनेक, एक या अनेक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2 शब्द डैश होने का बोध कराती है, उसे वचन। वचन क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। एक या एक से ज़्यादा, हम जब हम एक से ज़्यादा बना लेते हैं तो हमारे वो वचन कहलाते हैं। तो हमारा एक या फिर अनेक, एक या फिर अनेक, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो कौन सी वो डेट थी जब हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। तो बताइए कौन सा है आपका राइट आंसर, लिखो बच्चे, देखो सही आता है आपको, ऑप्शन लिखो आप अपनी, लिखिए, लिख ली। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो कितनी संख्या है जी, 14, 15, 18 या फिर 22। हमारा राइट आंसर है जी 22। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या तो 22 है जी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है जी, 22। ठीक है, अनुसूची कितनी है, 8वीं। अनुच्छेद कौन सा है, 343। 343 ये वाला अनुच्छेद है। नेक्स्ट है जी, हिंदी की आदजनी है। हिंदी की आदजनी, हिंदी की आदजनी संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर अपभ्रंश। हिंदी की आदजनी कौन सी है जी, कहाँ से हिंदी आई, संस्कृत से। ठीक है, हमारी आदजनी वैसे हिंदी के संस्कृत से शुरू हुआ ये सारा प्रचार। पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी। नेक्स्ट है हमारी हिंदी। ठीक है, पहले संस्कृत, आपको सीक्वेंस में भी आ सकता है, पहले संस्कृत है, फिर दूसरे नंबर ये पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृतिक है, फिर अपभ्रंश है, फिर हमारी हिंदी है 8वें नंबर पे। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन होती गई। नेक्स्ट है जी हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी दिवस का तो पता ही होगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए, बताइए सभी बच्चे, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है जी। 11 जून, 14 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। लिखो, लिखो बच्चे। तो हमारा आंसर राइट बताओ क्या है इसका, लिख लिया। हमारा राइट आंसर है जी 14 सितंबर।
14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी का दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं जी 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की एक और बोली है जी जिसको हम ब्रज भाषा बोलते हैं, ब्रज, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस रूप में वो सबसे ज़्यादा अधिक फेमस है जी? राज्य भाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। ठीक है, किस में वो ज़्यादा फेमस है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा में? लिखो आंसर, बताओ आप, आपका कौन सा है, सोचिए। तो हमारा राइट आंसर है जी काव्य भाषा। तो जो ब्रज भाषा है उसे वो अधिक किस रूप से प्रसिद्ध है जी? काव्य भाषा से, काव्य भाषा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में आप रखेंगे जी? भारतवर्ष में हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, तो आंसर आप सबको पता ही होगा। तो हमारा आंसर क्या है जी? राजभाषा। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, अर्थमागधी, शौरसेनी या फिर ब्राचड़। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसका, जैसे हम ये हमारा, फिर हम ऐसे देखते हैं मुंह लटका के कि पता नहीं इसका क्या आएगा, आंसर तो पता ही नहीं है, तो सुने ही नहीं है कभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है जी शौरसेनी। अगर आपने ये नाम भी सुना होगा ना, तो जैसे हम कई बार हमारे पास ऑप्शन होती है 1 2 3 4 ऑप्शन है कि ये नाम थोड़ा सा सुना सा लगता है, कई बार आप उस पर टिक लगा देते हो तो वो भी आपका सही चल जाता है, वो भी सही चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर चारों की चारों ऑप्शन, ये भी नहीं सुनी, ये भी नहीं सुनी, ये भी नहीं सुनी, ये भी नहीं, तो सुना ही नहीं है कुछ, अब फिर ऐसे मुंह बनाता है वहाँ पे है ना। तो फिर बच्चे अगर प्रिपरेशन की होगी तो फिर ऐसे मुंह नहीं लटकेगा, अगर प्रिपरेशन की होगी तो आंसर सही लगाओगे और ऐसा होगा चेहरा फिर आपका, है ना। तो हमारा राइट आंसर है जी शौरसेनी, ये हमारा राइट आंसर है जी। नेक्स्ट है जी, भाषा के आधार पर सबसे पहले कब राज्यों की भाषा के आधार पर सबसे पहले कब राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? पुनर्संरचना कब की गई थी जी? 1952 में, 1953 में, 1954, क्या है इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, 1954 या फिर 1956। ठीक है, 1954 या फिर 1956, 1954, 1956, 1953 या फिर 1952। तो हमारा राइट आंसर है बच्चे 1956। 1956 में जी क्या हुआ था? 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले कब राज्यों की पुनर्संरचना की गई? तो 1956 में। ठीक है बच्चे। सॉरी बच्चे, हमारी मदर टंग पंजाबी है ना, पंजाबी है, तो इस वजह से थोड़ा सा हिंदी में बोलने में दिक्कत आ जाती है। वैसे कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन है लेकिन बोलने में दिक्कत आ जाती है प्रोनाउंसिएशन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, हमारा इसका आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था सबसे पहले? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, भारतीय संविधान में राज्य भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें हमारी राज्य भाषाएं वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, 7 या फिर 8? तो हमारा राइट आंसर है जी अनुसूची 8। तो हमारा राइट आंसर है जी अनुसूची 8। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही है भाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए बच्चे, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, भाषा की लिखित रूप में बात बताते हैं।
भाषा की लिखित रूप में, अब देखो लिखित रूप में तो ऑलरेडी कैसे बताएंगे, बोलकर बताएंगे, नो, लिखकर बताएंगे, यस, दोनों नहीं, या फिर कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, हमारा 2 सही है, सेकंड नंबर। अब जब लिखित रूप में है तो लिखकर ही बताएंगे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है जी, लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्याकरण भाषा की क्या बताता है। व्याकरण भाषा की क्या बताता है, हम लोग हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्या सीखते हैं, उसका काम सीखते हैं, दोनों सीखते हैं, कोई नहीं सीखते, या फिर नियम सीखते हैं। तो हमने पढ़ा था व्याकरण हमें क्या सिखाता है, हिंदी के रूल्स, नियम। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, नियम। ठीक है, क्या है जी, नियम, ये देखो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प, अब ये कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। इसके बारे में हमने थ्योरी डिस्कशन की हुई है। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप इसका सही आंसर आसानी से दे दोगे। देखिए आप अपनी ऑप्शन क्या सही है, फिर हम बताते हैं आपको, सोचिए। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। पुष्प क्या है, एक तत्सम है जी, तत्सम। ठीक है, तत्सम है जी। तत्सम और तद्भव क्या है, पता है सबको, क्या होते हैं तत्सम और तद्भव, बताया हुआ है दोनों के बारे में, दोनों की डिटेल कराई हुई है कि तत्सम कौन से शब्द हैं, तद्भव कौन से शब्द हैं। लेकिन आपको आना चाहिए बच्चे, आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन उनमें से उनके अंडर का क्वेश्चन है, आ जाता है कि पुष्प क्या है, तत्सम है या तद्भव है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा एज इट। तत्सम कुछ तो है थे जो हमारे हिंदी में आके चेंज हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको हम हिंदी में ऐसे यूज़ करने लगे, तो वो थे हमारे तत्सम और तद्भव। तो ये हमारा पुष्प है, वो हमारा तत्सम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है जी, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सचरित्र, या फिर चरित्रता, या फिर चरित्र, या फिर सच्चरित्र, सच्चरित्र, बताइए, प्रोनाउंस करके देखो उस आप उसको। सचरित्रता, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना होगा, ऑलरेडी हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, सचरित्र। तो हमारा यहाँ पे प्रोनाउंस करके देखो, सचरित्र से बना सचरित्रता, सचरित्र से बना सचरित्रता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी हमारा क्वेश्चन, व्यापक शब्द का समानार्थी शब्द सुने, व्यापक शब्द का समानार्थी शब्द चुने, क्या है जी, बताइए। इनका सिलेबस जो हमारे जो बच्चे बताया था आपको, जो आपको जो हम आपके विलोम शब्द हैं, आपके अनेक शब्दों की जगह एक शब्द हैं, ठीक है, तो इनका कोई सिलेबस नहीं है, इनकी आप जस्ट क्या कर सकते हो, सिर्फ एक प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं से भी कोई भी वर्ड आपको आ सकता है, कोई भी वर्ड आपको पेपर में आ सकता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। हो सकता है आपके प्रैक्टिस किए हुए वर्ड्स में से आपने इतने सारे वर्ड प्रैक्टिस किए, तो उनमें से एक शब्द यहाँ वाला आपको आ गया, तो आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिए। तो व्यापक का अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। तो इसका राइट आंसर है जी प्रियपत, 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 प्रियपत। इसको प्रियपत को व्यापक भी कह देते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द इसका ये है। ठीक है, प्रियपत। नहीं पता तो देख लो। नेक्स्ट है जी, तोय शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। ठीक है, अब देखो ये पर्यायवाची शब्द है, ये भी कोई ये नहीं है कि 100 पर्यायवाची शब्द है, 100 में से ही आपको आएगा, 100 के 100 रट्टे लगाने हैं, नहीं। इसका भी सिलेबस बहुत वाइड है। सिलेबस नहीं कैसे, मतलब अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं है कोई, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किए में से आ गया तो वेरी गुड, प्रैक्टिस किए में से नहीं आया तो वेरी बैड। तो इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान करे आपको जितने वर्ड आप प्रैक्टिस करें उनमें से ही आपको एक आधा वर्ड आ जाए। तो ठीक है जी, इनकी प्रैक्टिस करो। हमारा तो जो क्या है, तो ये शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है जी, तो एक को जल, अग्नि, वायु या फिर वाणी, बताइए क्या हो सकता है। तो जो हमारा ये तो शब्द है, इसको हम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है जी, जल। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, जल। ठीक है, जल यानी कि पानी। ठीक है,
तोय का पर्यायवाची शब्द है जी जल, ये जल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कायर शब्द का सही विलोम शब्द चुने। कायर शब्द का सही विलोम शब्द चुने। कायर क्या, कायर सबल, साहसी, निडर या फिर निर्भर। ठीक है, क्या हो सकता है बच्चे? तो कायर का हमारा सही विलोम शब्द क्या है बताओ? सबल, साहसी, निडर या फिर निर्भर। क्या है इसका विलोम? लिखिए आप, फिर आप बताना। एक तो होता है कायर जो मैदान छोड़ के भाग गया, कि वो तो बड़ा ही कायर निकला, मैदान छोड़ के भाग गया। और एक था हमारा निडर जो वहीं पे डटा रहा, निडर जो वहीं पे डटा रहा। कायर था, छोड़ गया, मैदान छोड़ के भाग गया। तो कायर का हमारा विलोम आएगा जी निडर। ठीक है, निडर सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्न में से सही तत्सम शब्द चुने। सही तत्सम कौन सा है जी? सूत, खीर, पुण्य या फिर भांज। सूत, खीर, पुण्य या फिर भांज, इनमें से कौन सा तत्सम सही है जी? बताइए। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, पुण्य। पुण्य हमारा क्या है जी? राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है जी पुण्य। ठीक है जी, पुण्य। क्या था क्वेश्चन? तत्सम चुने, कौन सा तत्सम सही है जी? पुण्य। पुण्य एक सही तत्सम है। नेक्स्ट है जी निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग कौन सा है बताइए? पुल्लिंग वर्णन, शक्कर, विजय, संतान। ठीक है, संतान, औलाद, ये भी आप थोड़ा सा अपना फीमेल की तरफ है। विजय, जीत, शक्कर। तो हमारा जिसका राइट आंसर क्या आएगा जी? वर्णन। तो हमारा राइट आंसर आएगा जी वर्णन। ठीक है, ये राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा संकीर्ण शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संकीर्ण शब्द है जी, उसका समानार्थी शब्द का क्या बनेगा इनमें से? बताइए। दकियानुसी, नो। रूढ़िवादी, नो। नीचा, नो। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? संकुचित। संकुचित, संकुचित। ठीक है, संकीर्ण को संकुचित भी कह देते हैं, संकीर्ण को संकुचित भी कह सकते हैं। देखो हमने कितने वर्ड प्रैक्टिस कर लिए, कितने वर्ड प्रैक्टिस कर लिए। हो सकते हैं इनमें से आ जाए। ज़्यादा हम कितने ही डिस्कस कर ले बच्चे, ये कमी है। कितने भी आप इनको डिस्कस कर लो, ये कमी है। पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो आप प्रैक्टिस, अगर आपके पास पुरानी कोई बुक्स हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, आपके अदर सोर्सेस हैं वहाँ से आप रीड आउट कर लीजिए। कहीं से भी कोई भी वर्ड आपको आ सकता है। ठीक है, पता होना चाहिए एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, सॉरी बच्चे, नेक्स्ट है जी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होती है वर्णमाला? पढ़ा था हमने। शब्दों की माला, बताइए। शब्दों की माला, मोतियों की माला, गले में डालने वाली, बताइए। तुलसी की माला या फिर वर्णों की माला? ऑब्वियसली वर्णमाला है तो किसकी माला होगी जी? वर्णों की। वर्णों की माला। तो क्या वर्णों की माला को क्या कह सकते हैं हम? वर्णमाला। वर्णों की माला को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। बोर नहीं होना बच्चे, आपके हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं। हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के हमने ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं, कि सब जो आपको सिलेबस है उसके साथ बिल्कुल जो रिलेट करें। आपके सिलेबस को रिलेट करते हुए एमसीक्यू हम लेके आए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 70% हेल्प हो जाएगी बच्चे। जो हमने थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, जो हमने थ्योरी का मैराथन बनाया था, वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो हमने थ्योरी का मैराथन बनाया था ना, थ्योरी का मैराथन, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना उसका कोई, क्योंकि वहाँ पे हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। आपको उसका मीनिंग पता है, आपको क्लेरिफिकेशन है, तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इजीली सॉल्व कर दोगे हिंदी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है जी व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ये हमने किया हुआ है। व्यंजन के कितने भेद हैं जी? 2, 3, 4, 5। बताइए कितने हैं, बताइए। तो हमारे व्यंजन के कितने भेद हैं जी? 3। हमारा राइट आंसर है जी 3 भेद हैं जी हमारे व्यंजन की। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? हमने किया था हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर की, ये सब क्या है हमारे, इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कितना समय लेते हैं, क्या है, कौन कौन से हैं? तो हर्षव स्वर से कम, हर्षव स्वर से दुगना,
हर्ष स्वर से 3 गुना, हर्ष स्वर से 4 गुना। तो बताइए कितना समय लगता है? तो हमारा राइट आंसर है जी बिल्कुल हर्ष स्वर से दुगना। हर्ष स्वर से दुगना समय लेते हैं जी जो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ये इससे दुगना समय लेते हैं बोलने में। ठीक है, तो ये हमारा था राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए। हम तो अपनी तरफ से छांट के ले आए आपके लिए मटेरियल, ढूंढ के लेके आए हैं। आप अब इसको प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेवारी है, तो इसको प्रैक्टिस करो। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे सब है, यहीं पे सब है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन है जी हमारे नाक से, मुंह से, कंठ से या फिर ताल से। अनुस्वर को हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? नाक से। ऑप्शन थी जी हमारी नाक से, मुंह से, कंठ से या फिर ताल से। बताइए बच्चे, करवाया हुआ है आपको, वो हमने आपको पूरा टेबल एक्सप्लेन किया था ना, उसमें था ये टेबल में। बताओ इसका राइट आंसर क्या है जी, लिखो। लिख लिया? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है जी, नाक से। क्या था जी, नाक से। जो अनुस्वर हैं उनको हम कहाँ, उनका जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? नाक से। कहाँ से बच्चे? नाक से। नेक्स्ट है जी हमारा, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर भी हमने किए हैं, कौन सा है? अ, ओ, र, ऋषि या फिर ऊ। बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, जे डी है। 1 2 3 4 कौन सा है इनमें से? राइट आंसर बताओ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जी वो आंसर नंबर 2 है जी, ओ। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ओ। ठीक है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पे, सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 है? बताइए जी सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? राइट आंसर कौन सा है जी? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर 3, 4। सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं जी? 4। सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं जी? 4। याद रखना। कितनी टाइप्स होती हैं जी सार्थक शब्दों की? 4 टाइप्स होती हैं। ओके बच्चा, ये हमारा राइट आंसर है जी 4। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन सा निरर्थक शब्द है? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। पानी अर्थ है इसका अपना, पंकज, ठीक है, रोटी, बोटी क्या है? हमने पढ़ा था ना, रोटी बोटी, जो हमारे निरर्थक शब्द थे, रोटी बोटी। रोटी तो है लेकिन ये बोटी क्या है? बोटी तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा वो करेक्ट है जी। ठीक है बच्चे, अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, और अपना रिस्पांस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो। ठीक है बच्चे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। पूरी हिंदी हमने 2 वीडियोस में डाल दी आपकी ईटीटी की पूरी हिंदी का निचोड़ हमने 2 वीडियोस में थ्योरी प्लस एमसीक्यू के 2 सेशन बना दिए। इसके बाहर आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? हमने पढ़ा है ये सारा थ्योरी में। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? बताइए राइट आंसर कौन सा है? 2 भेद है, 3 भेद है, 4 है या फिर 5 भेद है? बताइए बच्चा। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? 2 भेद हैं जी। प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने टाइप्स में बांटा जाता है जी? 2 टाइप्स में। प्रयोग के आधार पर, ये मैंने जब पिछली थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी तब भी मैंने पूरा जोर डाल के आपको बताया था कि ये याद रखना, प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं जी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ए ओ औ कौन सा स्वर है? ठीक है, ये कौन सा स्वर है? बताइए। स्वर हमने किए थे ना, सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। बताइए हर्षव है, दीर्घ है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं? हर्षव कौन से होते हैं? दीर्घ कौन से होते हैं? संयुक्त कौन से हैं? सबकी थ्योरी मैराथन 1 में डन हुई है। अगर पता है तो आंसर बताइए।
लिखिए अपना आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी, बताओ बताओ बच्चा। तो ये हमारे क्या हैं जी, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ठीक है जी, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। उनकी काउंटिंग भी बताई थी कि गिनती कितनी है। ठीक है, कौन से 2 हैं, कौन से 3 हैं, कौन से 4 हैं, सबकी काउंटिंग बताई हुई है आपको, अगर आपको याद हो तो इनको याद कर लो बच्चे। इनमें से ही क्वेश्चन आपको मोल्ड होकर आ जाएंगे और आपका हिंदी वाला सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सैड नहीं होना, थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ा सा औखे होके पढ़ लो तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं जी, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 5, कितने प्रकार की होती हैं जी, 3 प्रकार की। तो ये तो बहुत ईजी था क्वेश्चन था। हमारी मात्राएं की कितनी टाइप्स हैं जी, 3। ठीक है, 3 प्रकार की। यस, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कुल कितने व्यंजन है जी, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, सारा करवाया हुआ है हमारा। हिंदी में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो 22 है, 10 है, 33 है या फिर 30 है, बताओ राइट आंसर क्या है। तो हमारा राइट आंसर है जी 33। कितना है जी, 33। हमारे हिंदी के व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है जी, याद रखना बच्चे, कितने व्यंजन है जी, 33। बार बार बोल रही हूँ, याद हो जाएगा ऐसे करके आपको। नेक्स्ट है जी, च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। च्वर्ग, जो हम च छ ज वाली लाइन जो पढ़ते हैं ना, च्वर्ग वाली, उसका उच्चारण स्थान क्या है, बोलो। च छ ज च। तो हमारी जो जीवा है वो किसको टच कर रही है, दंत को, कंठ को, औष्ठ को या फिर तालु को, ऑब्वियसली तालु को। तो जो च्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है जी, तालु। तो हम जब बोलते हैं, बोल के देखना, इनको कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पे बोल के देख लेना कहीं कहाँ पे आपकी जीवा टच कर रही है, तो वो हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। तो च्वर्ग है वो हमारे तालु को टच करते हैं, तब हम जो च्वर्ग वाली लाइन बोलते हैं वो वाला अक्षर। ठीक है जी, अच्छा लगा सेशन, अच्छा लग रहा है तो बीच में इसे कमेंट करके जरूर बता देना कि यस मैम वी आर एंजॉइंग द वीडियो, सेशन अच्छा लगा, वेरी हेल्पफुल, कुछ भी जो भी आपकी वर्डिंग है आप अपनी वर्डिंग में कमेंट करो, हम आपकी फीलिंग समझ जाते हैं और हमें अच्छा लगता है बच्चे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के बारे में भी बता दिया था, उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी। अभी इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या फिर कोई नहीं, बताइए। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या फिर कोई नहीं, राइट आंसर क्या है जी, लाल फूल। फूल की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, कैसे फूल है जी, लाल कलर के, कैसे है जी, रेड। तो हमारा जो गुण, इनमें से गुणवाचक क्या है जी, लाल फूल। फूल कौन से हैं, हमने फूल वाली की थी इसकी एग्जाम्पल, वैसे भी लाल फूल, ये हमारी इनकी गिनती, ये हमारी गिनती, ये संख्यावाचक है। ये 5 लड़के कितने हैं, 5, 10, ये हमने उसमें पढ़ा था संख्यावाचक में, तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या है जी, लाल फूल। तो ये गुणवाचक है। ठीक है बच्चे, लाल फूल। नेक्स्ट है जी, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो उनकी कितने भेद हैं जी, 2, 3, 4 या फिर 5, बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5 कितने भेद है जी संख्यावाचक के, तो हमारे आंसर क्या है जी, 3 भेद है जी। संख्यावाचक को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है, तो उसकी कितनी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जो संख्यावाचक विशेषण है हमारा 3, उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, इनको आप याद कर लेना। डिटेल में कोई नहीं पूछेगा उसके नाम या आगे आगे, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। तो संख्यावाचक के आगे फर्दर टाइप्स हैं जी 3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, तो अब देखो परिमाणवाचक थोड़ा सा अंदाजा ही लगा सकते हैं हम। परिमाण, शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, कोई नहीं। ठीक है, सब धन, कोई नहीं, 4 गज या फिर शेर भर दूध, परिमाण लगाया उसने, बताओ क्या है। यहाँ पे तो देखो ये तो बता दिया हमें गिनती पहले वाले में, सेकंड ऑप्शन में तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये तो हमारी ऑप्शन कट हो गई। नेक्स्ट कोई नहीं, तो कोई ना कोई तो होगा, अगर नहीं होगा तो देख लेते हैं, पहले इन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। शेर भर दूध, ठीक है, क्या बोले, शेर भर दूध। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, शेर भर दूध। शेर भर दूध है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हिंदी में कितने वर्ण हैं, हिंदी में वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या 32, 52, 40 या फिर 20, बताइए।
32, 52, 40 या फिर 20? बताइए कितने वर्ण है जी हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में? तो कुल जो हमारे हैं टोटल वो हैं जी 52। टोटल कितने हैं जी हमारे? 52 हैं जी। 52 हमारे वर्ण हैं जी हिंदी वर्णमाला के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? ये हमने किया है, पहली कर लिया था ये क्वेश्चन सबसे पहले। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? बताओ भाषा के कितने रूप हैं, बताइए जी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है जी 2। ठीक है, लिखित या फिर मौखिक। वैसे तो सांकेतिक भी होती है, लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 ही टाइप हैं, लिखित, लिखकर जो हम बोलते हैं लिखित वाली, और जो मौखिक, लिखित और मौखिक। ठीक है बच्चे, ये 2 ही हैं, लिखित और मौखिक, ये 2 भेद हैं, इसके 2 रूप हैं। नेक्स्ट जी, महेंद्र का सदी विच्छेद क्या है? महेंद्र, महेंद्र बताए, महेंद्र को प्रोनाउंस करके देखो। महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है उन्होंने। पहली ऑप्शन है मोहेंद्र, महो और इंद्र नहीं हो सकता, महो तो है ही नहीं है। महेंद्र, महेंद्र और जब महाइंद्र, अब इन 2 में से कंफ्यूजन है, बताइए आप। देखिए कि आपका आंसर क्या आता है, लिख लिए जी, क्या आएगा बच्चे बताओ, लिख लिया? तो जो बच्चे ने लिखा है, जिन्होंने सोचा है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, तो वो बच्चे बिल्कुल ही रॉन्ग हैं, वो बच्चे बिल्कुल ही रॉन्ग है। महेंद्र की, ये वहाँ पे महे और इंद्र है तो महेंद्र बन गया। तो महेंद्र, महा से स्टार्ट हुआ है वो, महाइंद्र, महा और इंद्र को जोड़ के बना महेंद्र, महेंद्र। तो जब महेंद्र को बन गया ना महेंद्र, महेंद्र, तो ठीक, ये 3 ऑप्शन नहीं है बच्चे, इसका राइट ऑप्शन आपका 2 ही आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जी, महा और इंद्र। ठीक है, महा और इंद्र, महेंद्र। ठीक है, इसको ऐसे छोटी ए और बड़ी ए की प्रोनाउंसिएशन को देख लेना अच्छे से, महेंद्र आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा अगले जी, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक, लंबाई, श्याम, घर, सभा। बताइए भाववाचक है, श्याम किसी का नाम है तो ये हो नहीं सकता, जातिवाचक का घर है ये भी नहीं है, सभा है ये समूह है। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? लंबाई। ठीक है, लंबाई, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हमारा लंबाई है जो राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, जो हमारा लंबाई है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री और पुरुष के जोड़े को, ये अनेक शब्दों की जगह एक शब्द वाला, कि स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाएगा? दंपत्ति, माननीय, विदुर या प्रियदर्शी, या प्रियदर्शी। दंपत्ति, माननीय, विदुर या प्रियदर्शी। अगर आपने हिंदी फिल्में देखी हैं तो वहाँ पे बोला भी जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए है, ऑप्शन नंबर 1 है जी, दंपत्ति। कि इस दंपत्ति को, इस जोड़े को, इस दंपत्ति को, इस जोड़े को, तो जो जोड़ा है उसको दंपत्ति बोलते हैं जी, दंपत्ति। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन है? चोर का, आप देखो चोर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, चोर को और क्या कह सकते हैं? चोर का पर्यायवाची शब्द मोशक, शशि, बेशर, धनद। बताओ क्या है? सुने भी नहीं होंगे ऐसे नाम। तो यही तो प्रैक्टिस है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी कोई नहीं पूछता, थोड़े इजी लेवल के नहीं पूछे जाते बेटे, टफ लेवल के भी आते हैं क्वेश्चन, इतना भी ज़्यादा इजी नहीं होता। तो इनकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो हमारा चोर का बताइए जी क्या है, क्या कह सकते हैं चोर को? और पर्यायवाची शब्द, चोर का पर्यायवाची है जी, चोर का पर्यायवाची शब्द है जी मोशक, मोशक है जी चोर का जो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जहाँ लोगों का मिलन हो कहलाता है, जहाँ पर लोगों का मिलन हो वो क्या कहलाएगा? संगम, ग्रामीण, सम्मेलन या फिर कोई नहीं। लोगों का मिलन होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं वहाँ पे सम्मेलन है, सम्मेलन लगा हुआ है वहाँ को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सम्मेलन। ठीक है, जब हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लोग आपस में मिलते हैं तो सम्मेलन है, कि संगीत समारोह का सम्मेलन है जी, तो वहाँ पे ठीक है, ऐसे हम ये वाला वर्ड हिंदी में यूज़ कर लेते हैं।
नेक्स्ट है जी कान कुतरना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कुतरना या फिर कान कतरना। जब बहुत तेज दौड़ना, नो। बहुत चालाक होना, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। सोच विचार में पड़ना, ये नहीं हो सकता। बहुत आदर करना, कान कुतर रहा है तो आदर कहाँ से करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी, बहुत चालाक होना, कि वो तो किसी के भी कान कुतर जाता है, ऐसा इतना चालाक आदमी है। तो जो चालाक उसको बोले कान कुतरना, कि बहुत ज़्यादा चालाक होना। नेक्स्ट है जी अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है जी शर्मिंदा होना, परेशान होना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना, कि उसने जो किया उसको उसका फल मिल गया। ठीक है, कर्मों का फल। अगर किसी ने अच्छा किया, किसी ने कोई बुरे कर्म किए हैं, तो अपना किया पाना, की जो उसने किया वो इसके सामने आ गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा हमारा कर्म का फल भोगना। अच्छे कर्म किए तो अपना अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट है जी तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक, इसका विपरीतार्थक कौन सा होगा? मंद, स्वस्थ, बुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए जी। तो तरुण का जो विपरीत है उसे हम बोलते हैं जी बुद्ध। तो क्या बोलते हैं जी? बुद्ध। ये इसका विपरीत शब्द है। ठीक है, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? ठीक है, कि कौन सा जो आपको लग रहा है, कौन सी ऑप्शन सही लग रही है, पढ़िए पहले ऑप्शन पढ़िए। अंश, हिस्सा। अंश कुछ और बात है, हिस्सा उपकार, भलाई, कुल, किनारा, तरंग, घोड़ा। इनका तो कोई मैच ही नहीं है, इनका भी कोई मैच नहीं है। अंश, इनका अंश और हिस्सा और उपकार, भलाई, इनमें से लग रहा है थोड़ा सा। देखो, इनमें से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ऐसे हम उलझ जाते हैं कि ऑप्शन ए आएगी या फिर बी आएगी, ए आएगी या फिर बी आएगी, ऐसे हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये है आपका आज का टास्क। ये वाला क्वेश्चन आपको टास्क बेस्ड दे देते हैं। आपका टास्क बेस्ड क्वेश्चन है जी। बताइए युग्म शब्द का सही क्या आएगा? अंश, हिस्सा या फिर उपकार, भलाई। आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं, ये तो नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1 है या फिर 2 है, आप बताना, कमेंट करना। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। इट मीन्स किसी को आता नहीं था, या फिर आपने आंसर देना जरूरी नहीं समझा। बच्चे, आप खुद को जज करो ना। आप देखो कि कितने बच्चे, आप कमेंट करोगे। आप एक बच्चा सोच लो कि मैं कमेंट करके बताता हूँ। अगर हर एक बच्चा ये बात सोच ले तो दूसरे जो बच्चे कमेंट करेंगे तो आपको उनके साथ आपका कंपटीशन भी आपको पता चलेगा ना, कि कौन सा बच्चा क्या आंसर दे रहा है। क्या मेरा सबके साथ मैच हो रहा है, या फिर मेरा अकेले का गलत है, सब सही बता रहे हैं। तो ऐसे आपको अपना लेवल पता चलेगा। आप सभी कमेंट करोगे। आप सोचते कि मैं क्यों देखते दूसरों का कमेंट क्या आता है। अगर आप खुद से शुरुआत करोगे फिर ही होगा ना। आप शुरुआत करो, आप शुरुआत कर रहे हो, दूसरे सामने वाला भी यही सोच के शुरुआत कर लेगा कि मैं देखता हूँ मेरा सही है या गलत है। क्या हुआ अगर बच्चे रॉन्ग आप आंसर दे देते हो? वो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल यहाँ पे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका लेवल कहाँ पे है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखी और कितनों ने कमेंट भी किया, बताना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं जी? 3, 8, 2 या फिर 5? बताइए पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के कितने भेद हैं जी? देखो कितने भेद हैं, 14, 12, 10 या फिर 18। थ्योरी में नहीं डिस्कस किया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई एक आधा थ्योरी में से स्किप हो गया या फिर इधर उधर से कहीं से आ जाता है, वो हमने एमसीक्यू में डाल दिया, तो आपको प्रैक्टिस आपकी अधूरी नहीं रहेगी। अगर कोई भी आपका पोर्शन छूट जाता है तो आप यहाँ पे इस पे आप अपनी डाउट्स है वो क्लियर कर लो, और अपना जो टॉपिक है वो उसकी भी क्लैरिफिकेशन कर लो। ठीक है बच्चे, और आपका सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो बताओ अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? बताइए जी। तुम्हारा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2, 12। तो ठीक है, इसका राइट आंसर है जी 12। 12 अर्थ अलंकार पूछा जा सकता है, कितने भेद है इसके जी? 12। अर्थ अलंकार के कितने भेद है जी? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? पहले हमने बिल्कुल फर्स्ट में ये क्वेश्चन कर लिया था
बिल्कुल पहला ये रिपीट हो गया क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन दोबारा से फिर रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, रिपीट होता है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा आंसर वैसे ही, अब मेरे को तो याद है भ्रोपी है, ठीक है, जो हमारा ये राइट आंसर है ये भ्रोपी है। तो ठीक है बच्चे, होप आपको भी पता होगा और आपने क्वेश्चन देख के ही पढ़ लिया। अब देखो बिल्कुल सही सही बताना कि इन बच्चों को इसका आंसर आता था। पहले हमने पढ़ लिया ना ये वाला क्वेश्चन, रीड कर लिया, पहले ही वीडियो में देख लिया, अब वही क्वेश्चन रिपीट में आ गया। मान लो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन आ गया, आपने सुना था ना वीडियो के बिल्कुल फर्स्ट में कि इसका आंसर हमने मैम ने करवाया था 12 रुपये, तो आपने देखा हुआ था, सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो आंसर आप बिना सोचे समझे यहाँ पे टिक लगा दोगे अगर आपको आता होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ी ही नहीं होगा तो क्या होगा, तुक्का लगेगा हमारा। कि मान लो अगर किसी बच्चे को पता भी है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अगर आपको आता है वेरी गुड बच्चे। अगर आपको पहले इसका आंसर नहीं पता, लेकिन आप एज एग्जाम्पल लेकर चलो कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, हमने वीडियो में ये रीड कर लिया था, ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया, आप इजी से फट से टिक लगा दोगे कि ये करवाया था, ठीक है। क्यों आपको आंसर कैसे आ गया, बिकॉज आपने इसकी रिवीजन की हुई थी, आपने इसकी रिवीजन ऑलरेडी की थी, तो आपको आंसर ऐसे ही झट से आ गया। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर ऑप्शन आपकी गलती चल जाती। तुक्का हो सकता है, एक आधे का तुक्का चल जाता, किसी ने लगा दिया तो उसका सही चल जाता, लेकिन अगर आप इनमें से किसी और को टिक लगा देते तो आपका मार्क्स कट जाता। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चे, वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ऑप्शंस रट जाएंगी दिमाग में, गारंटी देते हैं, गारंटी देती हूँ बच्चे मैं आपको, ठीक है, गारंटी देती हूँ, आपको ऑप्शन रट जाएंगी। आप आँखें खोलोगे, आप देखो आपका क्वेश्चन पेपर आया, आप देखोगे, आपको अगर पढ़े हुए हैं में से आता है तो यकीनन है आप ऐसी टिक लगा दोगे बिना सोचे समझे, ठीक है बच्चे, ऐसे पता चल जाता है। तो जिन बच्चों ने इसका राइट आंसर पहले ही दे दिया था कि यस ये हमने पढ़ा था, ये पता है, ये तो इसका तो ए है, ठीक है, मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया होगा 1, ठीक है, तो वेरी गुड उन बच्चों के लिए, वेरी गुड। बताना कि मैंने इस क्वेश्चन का मैम बता दिया था, हमें पल्ली पता चल जाएगा। भ्रोपी है, भ्रोपी है, आप कमेंट करना भारोपी है, कमेंट करना भारोपी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वर कितने हैं जी हमारे हिंदी वर्णमाला में, 10 है, 11 है, 12 है या 13 है, बताओ कितने हैं स्वर। स्वरों की गिनती कितनी है जी, 11, ठीक है, 11 स्वर है जी हमारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये ऐसी पता चल रहा है ये तो व्यंजन है, तो ये हमारा ये स्वर नहीं है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, अब देखो ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, बताओ कितनी है, पता चल गया ना देख के ही कितने व्यंजन है, 33। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, देखो पता था ना, डिस्कस कर लिया था, आंसर पता है। जरूरी नहीं ये आपको आता भी होगा, लेकिन डिस्कस, जो क्वेश्चन नहीं आते थे डिस्कस कर लिए, अगर क्वेश्चन में पेपर में आ गए हैं तो उसका आंसर भी आ जाएगा, जो डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसे अपने आप को जज करो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम कौन सा है इसमें से, ये तत्सम तत्व इनकी कर लेना आप प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद, तो थे हमारे, कुछ तो चेंज हो गए हिंदी में आके, कुछ एज इट रह गए, तो उसमें से एक शब्द ये है हमारा, कौन सा, गोधूम, गोधूम ये हमारा तत्सम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, गीतांजलि के रचयिता कौन है, गीतांजलि, गीतांजलि किन्होंने लिखी थी बताइए। ऑप्शन है जी हमारे, यशपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई, बताइए। यशपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई। हमारा राइट आंसर है जी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना थी गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना थी गीतांजलि, ये वाली हमारी गीतांजलि किन्होंने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है बताओ।
तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया बच्चे? मिश्र, संयुक्त, साधारण या फिर कोई नहीं। बताओ, आज बहुत पानी गिरा। सिर्फ सिंपल सी बात हो रही है ना, कुछ है नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं इसमें। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? साधारण। तो राइट आंसर क्या हो गया जी हमारा? साधारण वाक्य। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? कृष्ण का पर्यायवाची हृषिकेश, मुकुंद, महेश या फिर केशव। तो क्या है हमारा राइट आंसर? सबको पता ही होगा, वैसे सुना ही होगा सबने कृष्ण जी के बारे में। तो हमारा राइट आंसर आएगा जी केशव। तो केशव हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्रोध का विलोम शब्द चुने। क्रोध यानी कि गुस्सा, किसी पे गुस्सा कर देना, ठीक है, गुस्सा, चिल्लाना उस पे, तो ये क्रोध है। तो इसका विलोम सहयोग नहीं, सहयोग नहीं आएगा। क्षमा हो सकता है। आशीर्वाद, एक तरफ क्रोध एक तरफ आशीर्वाद, कोई बात नहीं बनती। कृपा, कृपया भी नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 क्षमा, ठीक है, गुस्सा करना, चिल्ला देना या फिर उसको माफ कर देना, क्षमा करना। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये निम्न में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। कोई इसमें से अनोखा, बेमेल, जिसका कोई मेल ही नहीं खाता। तबला, गायक, सितार, कालीन। तबला, तबला ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, ये भी म्यूजिक के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी म्यूजिक के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमारा जो ऑपोजिट है इनमें से क्या है जो इसके साथ मेल ही नहीं खाता? तो ऑप्शन नंबर 4 है जी कालीन। तो कालीन का इसके साथ कोई संबंध नहीं आ रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो सही है। नेक्स्ट है जी अल्पज्ञ शब्द का विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ, अभिज्ञ, स्वज्ञ या फिर कोई नहीं। तो जो हमारा अल्पज्ञ है उसका विलोम आएगा जी स्वज्ञ, ठीक है, स्वज्ञ इसका ये विलोम है, ये उल्टे इसका ये आता है विलोम में, ठीक है। इसको ये तो याद ही करना पड़ेगा बच्चे, इसका कोई रूल नहीं है, ऐसी चीज़ों के कोई रूल नहीं होते, ठीक है, जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जी करुणा किसी डैश की अपेक्षा नहीं करती। करुणा किसी डैश की अपेक्षा नहीं करती। तो किसकी अपेक्षा नहीं करती करुणा? ठीक है, करुणा किसी डैश की अपेक्षा नहीं करती। प्रतियात, पुरस्कार, प्रतिकार या फिर प्रतिशोध। तो ये हमारा राइट आंसर वैसे ही पता चल रहा है पढ़ के, प्रतिशोध। करुणा किसी प्रतिशोध की अपेक्षा नहीं करती। हमारा राइट आंसर है जी प्रतिशोध। नेक्स्ट है जी हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर होते हैं? मूल स्वर कितने हैं जी हिंदी में? 7, 6, 4 या फिर 2। 7, 6 या फिर 4 या फिर 2। मूल स्वर कितने हैं बताइए? तो हमारे हिंदी में मूल स्वर 4 हैं जी। 4 हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है, 4 हमारे मूल स्वर हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है जी शेर के बच्चे को हिंदी में क्या कहते हैं? अब देखो शेर का बच्चा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक शब्द की जगह एक शब्द में नहीं आता, ये वैसे ही पूछा है। शेर के बच्चों को अगर हम पूछा जाए क्या कहते हैं? शबक, बछड़ा, बछड़ा तो नहीं होता, पिल्ला भी नहीं होता, मेमना भी नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? पहला ऑप्शन नंबर ए, बछड़ा बछड़ा नहीं होता, पिल्ला नहीं होता, मेमना नहीं होता, ये तीनों कट हो गई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शाबक। नेक्स्ट है जी फुफकारना। फुफकारना शब्द फुफकारना शब्द किसकी बोली है? ठीक है, फुफकारना शब्द निम्नांकित किसकी बोली है? मतलब निम्नलिखित में से, नीचे लिखो में से फुफकारना किसकी बोली है जी? बताइए, फुफकारता कौन है? सांप, शेर, घोड़ा या फिर गाय। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी? सांप, ठीक है, फुकारे तो सांप ही मारता है ना। तो हमारा राइट आंसर आएगा जी सांप, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ से बोला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है जो कंठ से बोला जाता है? तो कंठ से हम कौन सा बोलते हैं जी? जब हम कंठ से आ जाती है प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर क वर्ग, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर बताइए? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा आपकी स्क्रीन पर, आदान शब्द का विलोम शब्द चुने। आदान शब्द का विलोम शब्द चुने। तो आदान का विलोम वैसे हमें दिख रहा है, त्याग होता है, नो, दान, नो, अपर्ण, नो, प्रदान। तो हम बोलते हैं ना आदान प्रदान, विचारों का आदान
प्रधान। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो अदान का विलोम क्या हुआ जी? प्रधान। नेक्स्ट है जी, गणतंत्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? गणतंत्र शब्द का सही विलोम, गणतंत्र का विलोम क्या बनेगा जी? प्रजातंत्र, नायकतंत्र, लोकतंत्र या फिर राजतंत्र? बताइए जी, सोचिए क्या आएगा इसका आंसर। राइट डाउन करो बच्चे, बताओ। तो गणतंत्र का जो हमारा विलोम बनेगा वो है जी ऑप्शन 4, राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम होता है जी राजतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट जी, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? ये याद करने वाला क्वेश्चन है बच्चे, एज इट याद करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा है रस के कितने अंग होते हैं जी। ऑप्शन है हमारी 6, 5, 4 या फिर 2। 6, 4, 5 या फिर 2। बताइए क्या आएगा राइट आंसर? तुम्हारा राइट आंसर है जी 4। ठीक है, 4 हमारा राइट आंसर है जी। याद कर लेना, रस के कितने अंग होते हैं? 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4, याद रख लेना। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमें एज इट याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जी, भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान है? भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान है? कैसे पता चलता है कि ये भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं? उसे पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छू सकते हैं या फिर उसे छू नहीं सकते? बताइए क्या आएगा? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी आपको ऑप्शंस आई हैं, बड़ा अच्छा आपको किया है उन्होंने, उलझाया है। बताओ, लिखो अपना आंसर जी। तो हमने पढ़ा भाववाचक संख्या जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते। ठीक है, उसे छू नहीं सकते। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का, कुर्सी, मेज या फिर दिल्ली? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? दिल्ली। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर है जी दिल्ली। अब देखो दिल्ली हुआ कैसे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ ने टिक लगाया होगा लड़का पे। ठीक है, हमने बोला था टिक लगाओ तो लड़का बोला होगा कुछ बच्चों ने, पर लड़का आपका आंसर गलत है। ये किसी जाति का बोध करवा रहा है। और उन्होंने हमें पूछा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? क्या होती है? डेफिनेशन क्या है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु उसका बोध कराती है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जी दिल्ली, क्योंकि ये किसी स्थान का बोध करवा रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया जी हमारा क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो हम जिनका यूज करते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं वो? बताइए, टिक कीजिए अपना, फिर देखना आपका सही जाता है कि गलत। ऑप्शन है जी हमारी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो ऑब्वियसली हमें पता है इसका राइट आंसर तो सर्वनाम जी। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है जी पुरुषवाचक, पुरुषवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद है जी? पुरुषवाचक को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में जी? 3 टाइप्स में। ठीक है, पता था? उत्तम पुरुष, मध्यम, मध्य पुरुष, वो वाले बताए थे ना। तो पुरुषवाचक या फिर पुरुषवाचक हम पंजाबी में कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी? 3। कितने हैं जी? 3। तुम्हारा राइट आंसर क्या है जी? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के हमें फर्दर आपको बताए थे कौन सा है। संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, फिर या फिर उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है जी, बताइए। हमने उसकी डिस्कशन करी थी डिटेल में, मैंने आपको ऑरली बताया था कि नोट डाउन कर लो इस चीज़ को। तो जो करेगा सो भरेगा, ये कौन सा सर्वनाम है जी? संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर उत्तम पुरुषवाचक है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है जी हमारा संबंधवाचक। तो ये इसका संबंध दर्शा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, आपस में कनेक्शन कर रहा है दो लाइनों का। तो हमारा इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, ठीक है, कौन सा है? देखो, मैं, स्वयं, कौन या फिर स्वत।
तो ठीक है, प्रश्नवाचक कौन सा है वैसे ही देखकर पता चल रहा है जी हमारा राइट आंसर क्या होगा। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कौन व्यक्ति था, ठीक है, कौन व्यक्ति था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कौन गा रहा है, क्वेश्चन पूछ रही है टीचर, कौन गा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, तो ये हमारा कौन क्या है जी, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? विशेषण होते क्या हैं? जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है, मानव की विशेषता, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, तो मानव से बनने वाला विशेषण क्या होगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय, ठीक है, क्या बनेगा जी? तो हमारा इसका राइट आंसर बताइए बच्चे, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4 मानवीय। हमारा राइट आंसर है जी मानवीय, ठीक है। नेक्स्ट है जी, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल वाली क्रिया कौन सी है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, या फिर कोई नहीं। बताइए, सामान्य भूतकाल की बात हो रही है, तो इसमें सामान्य भूतकाल वाली टाइप हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 उसने पुस्तक पढ़ी, कि उसने पुस्तक पढ़ी, ये हमारी सामान्य भूतकाल की टाइप है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाचक नहीं है? जो संबंधवाचक नहीं है, अब उन्होंने पूछा जो नहीं है, कहीं कुछ, जिसे उसे, जो सो, जिसको उसको, तो जिसको उसको भी, इसका भी आपस में कनेक्शन है, जो सो, जिसे उसे, कहीं कुछ, तो हमें ये वाला ऑप्शन है जो लग रहा है कि कहीं कुछ है जो संबंधवाचक नहीं बन रहा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है जी? ऑप्शन नंबर 1 कहीं कुछ, तो ये संबंधवाचक को नहीं दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, राजू ने नई कमीज पहनी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? राजू ने नई कमीज पहनी है, इसमें वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? बताओ, चारों की चारों आपको क्लियर करवाई हुई हैं कि क्या इनका मीनिंग होता है। देखिए आंसर इसका, बताइए। तो यहाँ पे कमीज की क्या बता रहा है वो? गुण विशेषता, कमीज की कमीज क्या है? नहीं है कोई, यहाँ पे कोई सार्वनामिक नहीं है, संख्या नहीं हो रही, कोई किसी चीज़ का परिमाण नहीं हो रहा, तो गुणवाचक है जी। कमीज क्या है? नहीं है। कमीज की विशेषता क्या है? कि नई कमीज पहनी है उन्होंने, तो गुणवाचक है जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, एक कमीज को कितना कपड़ा चाहिए? एक कमीज को कितना कपड़ा चाहिए? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 2 किलो। क्या है ऑप्शन? 2 किलो। तो क्या कपड़ा किलो में हो सकता है? ठीक है, 2 किलो नहीं है कोई चीज़ नहीं। 2 मीटर, यस, कपड़े को हम कैसे मेज़र करते हैं? मीटर में। 2 लीटर, ये भी नहीं सही है। 2 दर्जन, ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चे? 2 मीटर, क्योंकि जब हम कपड़ा की मेजरमेंट करते हैं तो किस में लेते हैं? मीटर में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे थोड़ा दूध दे दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ा दूध दे दो, कितना दूध मांगा है? थोड़ा सा दूध मांगा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? बताओ, निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक, निश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक? बताइए जी, बताइए राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा सा दूध मांगा है, कोई क्वांटिटी बताई नहीं है कितनी है, थोड़ा सा दूध दे दो, तो ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका राइट है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया की टाइप्स कितनी है जी? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? बताओ, ठीक है बच्चे, बताओ कितनी टाइप्स हैं? लिखो अपना आंसर, बाद में देखना आपका सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं जी? 2। कितनी टाइप्स है बच्चे? 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। होती क्या है सकर्मक क्रिया? जिसमें क्या होता है? क्रिया और कर्म दोनों मौजूद होते हैं, क्रिया और कर्म दोनों मौजूद होते हैं, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। लिख लो अगर किसी को नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट है जी, बच्चा हंसता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चा हंसता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। हमारा ऑप्शन है जी अकर्मक, सकर्मक, ये दोनों या फिर कोई नहीं। अकर्मक, सकर्मक, ये दोनों या फिर कोई नहीं।
तो इसमें बच्चा सिर्फ एक क्रिया कर रहा है कि अगर हंस रहा है उसके द्वारा एक क्रिया हो रही है कि वो हंस रहा है, तो ये हमारी कौन सी है जी? अकर्मक, जिसमें सिर्फ क्रिया होती है। सकर्मक जिसमें क्रिया और कर्म दोनों होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट ही होगी, तो हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, मनोज खाना खा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मनोज खाना खा रहा है, ठीक है जी। तो बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन क्या है बच्चे हमारी? मनोज खाना खा रहा है, इसकी ऑप्शन है अकर्मक सकर्मक दोनों या फिर कोई नहीं। मनोज खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या है बताओ? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, दोनों है या फिर कोई नहीं? बताइए बताइए जी। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया भी मौजूद है और कर्म भी। मनोज, अगर उन्होंने पूछा था मनोज खा रहा है तो हमारी ये अकर्मक होती, तो उन्होंने बोला है कि मनोज खाना खा रहा है, वो कर्म भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया भी हो रही है, तो ये हमारी क्या है जी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। जहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों हो रही हैं, तो हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पे, लिंग किसे कहते हैं? लिंग जो स्त्री जाति का बोध करवाए, नो। जो पुरुष जाति का बोध करवाए, नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। जो स्त्री जाति व पुरुष जाति का बोध कराए, ये थोड़ी सी सही लग रही है। लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सी सही है? बताइए जी। तो उन्होंने हमें बच्चे लिंग के बारे में पूछा, तो लिंग है जो वो दोनों का बोध कराता है, ओनली स्त्री का नहीं, ओनली पुरुष का नहीं, जो स्त्री जाति व पुरुष जाति दोनों का बोध कराए, तो ये हमारी राइट आंसर। अगर ओनली स्त्री जाति तो उसको भी हम लिंग नहीं कह सकते, लिंग है, लेकिन लिंग होता है कि जो दोनों जातियों का बोध कराए, वो से हम लिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बोला है, 2 टाइप के लिंग होते हैं जी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो मेल को हम जो मेल जाति को हमारा दर्शाता है वो पुल्लिंग होता है, और जो फीमेल को वो हमारा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे इन्होंने पुल्लिंग पूछा है। मालिन है, बेटी है, चुहिया और शिक्षक, ठीक है। तो ये तो सब स्त्री जाति को का बोध करवा रहे हैं, तो यार हमारा राइट ऑप्शन क्या है जी? शिक्षक, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, गणतंत्र शब्द का सही विलोम, ये देखो रिपीट हो गया बच्चे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन भी 2 बारी, ठीक है। तो गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए, करा होगा तो हमने पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा होता है तो देख के ही हमें उसकी ऑप्शन पता चल जाती है, तो उसका राइट आंसर आप सबने पहले ही देख लिया होगा, राजतंत्र। तो गणतंत्र का हमारा जो विलोम शब्द है वो क्या है? राजतंत्र, ठीक है जी। ऐसे ही जब आप रिवीजन दोबारा 2-2 3-3 बार वीडियो रिपीट करके देख लोगे ना, तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे, देखते ही ऑप्शन पता चल जाएगी कि ये हमारी राइट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का मैराथन सेशन कंप्लीट होता है जी। हमने अपना सारा मैराथन कंप्लीट कर लिया। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे राजे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबकी डिस्कशन हमारी कंप्लीट होगी। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चे, ताकि जो अब हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपके 2-3 मैराथन और रेडी हो रहे हैं जी, जैसे कि हाँ इंग्लिश की बच्चों ने डिमांड की थी, इंग्लिश का, SST का। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आता तब तक हम आपके मैराथन लेते रहेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम एक एक वीडियो बनाएं, इतना टाइम नहीं है कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं। तो बच्चों की डिमांड है कि मैम सिर्फ मैराथन ही बनाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है हम उसको एक वीडियो में कवर कर सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस एक वीडियो में ही कवर हो जाए और बच्चों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो बच्चे, अच्छी लगी वीडियो ज़रूर लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैंने आपको बोला था ना कि आप अपना ऑप्शन लिखना, बाद में ठीक आपने चेक करना है कि आपकी ऑप्शन सही है या गलत है। ईमानदारी से आपने कमेंट करना है कि हमने हमारे इतने करेक्ट गए, पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ पे है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो चैनल को लास्ट में फिर बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा लगा आपके साथ सेशन शेयर करके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रॉम ब्रैच ऑनलाइन क्लासेस।